Hi guys, welcome back to my channel. It's me Nitya. For today's video, we are going to do a taboo talkies which is related to menstrual cup and menstruation. So let's start. Let's start with this. I have already know there are many more videos in the YouTube about it and they are somehow related to each other. बहुत कॉमन है और कुछ चीज़ें न्यू है किसी वीडियोस में, बट येस एक चीज़ है जो नहीं बता रखी है किसी ने एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी कुछ डिफरेंट था, प्लस मोस्टली लोग हैं जो अभी भी कंफ्यूज्ड हैं. सो मे बी दिस वीडियो हेल्प यू अ लॉट बिकॉज दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू माई पर्सनल experience with the cup. So let's start with this. This is my cup which is extra small in size and it is from P-Safe. So जो दो कंपनीज थे उस टाइम जिस टाइम मैंने इसे ऑर्डर किया था जो कि नंबर 1 पे चल रहे थे फॉर मेंस्ट्रुअल कप इज़ सिरोना एंड P-Safe. So Sirona and P-Safe have different way of elaborating sizes. Like in P-Safe you have 3 sizes. One is extra small, second is small, and third one is medium. In Sirona we get the same 3 size in different names. Like in Sirona the extra small is named as small, small is named as medium, and medium is named as large. So you can buy anyone जो भी आपको पसंद हो. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. So आपको जहाँ से जो बाय करना है आप कर सकते हैं. So next up we have the question which comes out very easily, like it is comfortable. Yes, it is comfortable. Like if you are someone like me who don't like pads and who get irritated because of some stickiness of the pad and have rashes, redness, and just being discomfortable with the pads, so yes, it's a green check. You can go and buy it because it's lovely. When you are inserting it, it might be a little painful and जब आप इसे बाहर निकालेंगे तो भी हल्का सा पेन हो सकता है, but rest of the time you don't feel that you have anything in your body and you can take it in your body up to 12 hours easily if you have less flow. Of course first day में नहीं, आपको चेंज करना पड़ेगा 8 to 9 hours में, but after first day of duration, although it also matters on your cycle and the amount of the blood you release. But okay, so I am continuing my video on next day because same day पे मुझे कुछ काम आ गया था. तो with continuous we are talking about कि there was a little such pain on the time when you are inserting it and extracting it from your body, but hence it is very comfortable. Like it's a check अगर आपको यूज़ करना है, it's all depends on you, but it is seriously much better than pads because आपको उसे हर 4 घंटे में चेंज नहीं करना है एंड पैड्स को चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है 3 से 4 घंटों में. और अगर आप मेरी तरह लेज़ी है ना ये काम करने में, देन यू हैव टू गो विद कप्स बिकॉज हर 3 to 4 आवर्स में आप नहीं चेंज कर पाएंगे एंड इट डजेंट मैटर वो पूरा फिल हुआ है या उसमें बहुत कम अमाउंट में रिलीज हुआ है ब्लड, बट यू हैव टू चेंज बिकॉज ऑफ योर हाइजीन. यू हैव टू मेंटेन दैट. वेदर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है उससे ज़्यादा टाइम तक लगा. आपको अपना हाइजीन मेंटेन करने के लिए उसे चेंज करना ही पड़ेगा. वेदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है आपको इनसाइड योर बॉडी, और TSS हो सकता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, विच इज़ हार्मफुल. और इन सब से बचने के लिए आपको, चाहे वो फिल्ड हो अनफिल्ड हो, हर 3 से 4 घंटे में आपको उसे चेंज करना ही चाहिए और करना पड़ता है. अगर आप फिल है तो करना पड़ेगा. वेदर ना अगर ज़्यादा टाइम तक एक पैड को यूज़ करते हैं, सिंड्रीज को यूज़ करते हैं, तो फिर वो वैसे भी ना बहुत ऑकवर्ड हो जाते हैं और बहुत डिसकम्फर्टेबल, like you feel very discomfortable. Don't know why, there is some things which just combine together, so it's very ridiculous. So with further, if you are using new products, like there are some new products which is more comfortable, I guess. There are menstrual panties and tampons. So tampons, and there are some disposable panties as well and disposable pads, like जिसको आप use करके wash and sterilize करके again use कर सकते हैं.
एंड ऑल्सो देर आर मैनी टाइप्स ऑफ कप्स इन द मार्केट, लाइक अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ गई है कप्स की, एंड बहुत टाइप्स की कंपनीज अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रही है. सो बेसिकली अगर आप कप लेना चाहते हैं ना, सो आई पर्सनली रिकमेंड कि कोई भी लें तो आप इंश्योर करें कप के नीचे उसका स्टेम हो, बिकॉज स्टेम के बिना यू कैन नॉट टेक इट आउट ईजीली. स्टेम हो या कोई भी ना एक चीज़ हो जिसकी हेल्प से आप उससे स्टक आउट कर लें ऐसे. बिकॉज देर आर मैनी कप जो ना ऐसे सिर्फ सर्कल में है, उनके नीचे कुछ स्टेम या फिर कुछ भी नहीं है. सो सेकेंड थिंग्स, अगर आप टैम्पॉन्स यूज़ कर रहे हैं तो बी केयरफुल, बिकॉज वो जब उसमें ब्लड फिल्ड होता है ना तो वो ऐसे स्प्रेड होना शुरू हो जाता है, एंड व्हेन दिस स्टार्ट स्प्रेडिंग ना वो आपकी बॉडी को टच करेगा, which also leads to bacterial infections, TSS, again harmful for your body. वो inerted है, ठीक है, मगर वो आपकी बॉडी so again it's harmful. Next question which is easily can come in your mind is, अगर tampons insert होते हैं बॉडी में और वो harmful है, then why cup is not harmful as well? वो भी तो बॉडी में इनर्ट हो रहा है. सो द आंसर इज़ वेरी क्लियर एंड सिंपल. जो टैम्पॉन्स है वो एक स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है, इतना पतला, और जब वो फिल होता है ना वाइड होना शुरू हो जाता है. लाइक अगर वो इतना स्लिम है तो वो इतना वाइड होगा और वो आपकी बॉडी की सर्फेस को टच करेगा. व्हाट अबाउट कप इज, वो एक तो सिलिकॉन मटेरियल से बना हुआ है विच इज़ सेफ फॉर द बॉडी, एंड सेकेंड थिंग इज दैट कप सक्शन क्रिएट करके ऐसे रहेगा. कप आपकी बॉडी को टच कर रहा है, ब्लड नहीं टच कर रहा है. और टैम्पॉन्स में जब ब्लड कलेक्ट होगा तो ब्लड भी आपकी बॉडी को टच करेगा, जिससे आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, अगेन TSS हो सकते हैं उसकी वजह से. सो बी केयरफुल ऑन दैट अगर आप टैम्पॉन यूज़र हैं. सो इस चीज़ का ध्यान रखें. अगर आप टैम्पॉन यूज़र हैं सो अपनी बॉडी के लिए थोड़े से केयरफुल हो जाइए. अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. फॉर श्योरली आप जो भी यूज़ करते हो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करते होंगे, बट अगर आपको कप्स को लेके कोई भी क्वेश्चन है, लाइक अगर इंसर्ट कर रहे हैं तो किस तरीके से करें और कौन सा कप किसे लेना चाहिए, एंड व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू टेक इट आउट, एंड हाउ वी कैन पी. सो all the question are in the video, so stay tuned. First of all, कप को इंसर्ट करने के बहुत तरीके हैं. आपको ऑनलाइन करोगे ना, आप गूगल से बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे, बट पर्सनली सजेशन है मेरा, इफ़ यू आर अ टीनेजर ना, then it is only one trick to insert it, which I personally use and pursue in my life when I was menstruating. So बताने से पहले ना, let me clear your few questions, so that ऐसा ना हो कि मैं तरीका बता दूँ and then you have some more questions. So let me clear it first. हाँ, so extra small from PCA for the teenager girls and for the girls who are not sexually active in their daily life. Second, small cup is for married women or the girls who are sexually active, because cup size matters for your body. Third one is large or medium cup is for the ladies who give birth to a baby through normal delivery. So cup का तो डिफ्रेंसिएशन बता दिया मैंने, कौन सा किसको यूज़ करना है. अनदर थिंग वाज हाउ यू कैन पी इफ़ यू हैड कप. सो आपको निकालना पड़ेगा या फिर इट्स ओके टू बी देयर. सो द आंसर, you can easily urinate if you're having cup. Actually, we girls have a different hole for urination and for urine procedure in our body. So जो cup लगेगा that is in your vagina, and from you pee is from your urethra hole. So आपको निकालना नहीं पड़ेगा cup. It is okay. cup वहीं पे रहने दीजिए, कुछ issue नहीं होगा उससे. एंड कब लगते ही कुछ बॉडी में डिफरेंस होगा? नो, कुछ डिफरेंस नहीं होता आपकी बॉडी में. वो आपकी बॉडी वैसी ही रहेगी. कप आपकी बॉडी को कुछ नहीं करेगा. बहुत फ्लेक्सिबल कप है, बिकॉज चाहे छोटा हो या बड़ा हो, साइज़ है उसका कि इजीली नहीं इनर्ट होता वो बॉडी में. सो फ्लेक्सिबल कप है, वो आपकी बॉडी को कोई इशू नहीं करेगा, इंटरनल बॉडी में कुछ दिक्कत नहीं देगा. नाउ नेक्स्ट. Okay, अब now this is my cups pouch. I have bought it
इन सितंबर और अक्टूबर, मुझे सही से मंथ याद नहीं है, 2021. And this is my extra small cup from PSafe. It collects bloods up to 16 ml, जैसे कि इसके बॉक्स पे लिखा हुआ है, ये रहा 16 ml तक ब्लड कलेक्ट करता है ये. और देर आर मैनी ट्रिक्स कि कैसे करें. सो बेसिकली जो सबसे पहले अगर आप चेक करेंगे ना, जो बताई जाए, दैट इज़ द सी फोल्ड, विच इज़ ऐसे. पंच इट एंड मेक इट अ सी और यू. इससे नहीं जाता है फॉर टीनेजर्स गर्ल्स, नहीं जाएगा. एंड व्हेन यू आर इंसर्टिंग इट ना, सो पैनिक मत करना, बिकॉज पैनिक करने से ना बॉडी, इनसाइड बॉडी हमारी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाती है. सो जो यूज़ करने के बारे में सोच रहे हैं ना, ऐसे करके ट्राई कर लेना, वैसे नहीं जाएगा. सेकेंड फोल्ड इज 7 फोल्ड, ऐसे, देन ऐसे मेक का 7. इट्स अ 7 लाइक स्ट्रक्चर, लाइक 7 ऐसे होता है ना, तो वैसा ऐसे. सो आई डोंट फाइंड इट वर्केबल एज वेल. मेरे को ये भी यूज़फुल नहीं लगा था. सो आपको ट्राई करना है, आप कर सकते हैं ये भी. वैसे तो 12 या 13 तरीके हैं, बट ये 3 जो मेजर दिखा रखे हैं ना, इसकी बुकलेट में भी आई गेस, वो यही है. और तीसरा, थर्ड वन इज समथिंग ऐसा पंच डाउन करके, ऐसे सर्कल, ऐसा पंच डाउन ऐसे, एंड देयर इज अ सर्कल लाइक दिस. सो सर्कल इतना ऐसे नहीं करना, थोड़ा बहुत सिमिलर वाला तरीका विच आई एम टॉकिंग अबाउट, बट इस तरीके से नहीं करना. सो द ट्रिक इज, दिस इज योर कप. वी आर यूजिंग द पंच डाउन वन, बट थ्रू अ trick. Wait, this is your cup. First, before using your cup, make sure you have to sterilize it. आप कोई भी कंटेनर लें, उसमें पानी फिल करें, क्लीन वाटर, एंड उसमें अपना कप डाल दें. 5 और 10 मिनट तक आप रखिए उसे बॉईल, जब तक वो नहीं होता. और ऐसा रोटेट मत करना उसे कि पानी है वो आधा बाहर निकला आधा अंदर है. कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको उसे छेड़ने की. 10 मिनट तक आप स्टेरिलाइज करें. और अगर आपने स्टेरिलाइज़र ले रखा है ना, तो वो मशीन तो खुद कर देगी. बट इफ़ यू डोंट हैव स्टेरिलाइज़र, या फिर आपको स्टेरिलाइज़र खुद ही नहीं लेना है, देन यू कैन डू दिस. उसमें डाल दीजिए, और ये खुद ही जब ये बॉईल होता है, ये खुद ही ऐसे रोल रोल घूम के ना पूरा अपने आप को कवर कर लेता है. तो ये खुद ही स्टेरिलाइज हो जाता है. आपको बस इसे पानी में डालना है, गर्म करने के लिए रख देना है, 10 मिनट बाद उसे निकाल. 10 मिनट बाद ये इसे खुद ही स्टेरिलाइज कर लेगा. एंड आप इसे बाहर निकालना, गर्म पानी फेंक देना. इसको नॉर्मल पानी से वॉश करके ऐसे थोड़ी देर रख देना, अपने आप ही सूख जाएगा. देन दोबारा इसके इस पैकेट में डाल के रख देना, इसे पाउच में अपने. और ये आपको कब करना है, जब आप अपना कप ऑर्डर कर लेंगे, वो आपके पास आ जाएगा, डिलीवरी हो जाएगी ना. सो मेक श्योर करें आपका कप प्रिपेयर टू यूज़ हो एनी टाइम. सो आप जब भी वो आपका कप डिलीवर हो घर पे, आप सेम प्रोसीजर करो, इसमें रख लो. और अगर आपको ऑलरेडी मेंस्ट्रुएशन हो रही है, देन यू कैन डू दिस एंड आप इसे इंसर्ट कर सकते हैं. बट मेक श्योर पैनिक मत करना, वरना इंसर्ट करने में प्रॉब्लम होगी. सेकेंड थिंग इज़ दैट, जब आपका जो डेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, वो ख़त्म हो जाए ना, जिस दिन ख़त्म हो रहे हो, या फिर अगर आप एक्स्ट्रा दिन वेट करते हो, तो उस दिन भी आप ये लगा सकते हैं. सो उसके बाद भी ना, जब वो ख़त्म हो, देन आपको अगेन सेम चीज़ करके रखनी है. इसको दोबारा स्टेरिलाइज करना है, दोबारा इसमें पैक करके रख देना. और ये 5 ईयर्स तक चलेगा, तो कोई टेंशन नहीं है इसकी. आप हर महीने इसी को यूज़ कर लीजिए, एक्स्ट्रा पेयर मत लीजिए. अभी आपकी मर्ज़ी, आपको लेना है तो लीजिए, वरना मत लीजिए. 5 ईयर्स तक चलेगा. सो ऑलवेज मेक श्योर, चाहे आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं, चाहे आपके ख़त्म हो के आप दोबारा यूज़ कर रहे हैं, आप इसे स्टेरिलाइज करके रखें, ताकि ये रेडी टू यूज़ हो कभी भी. बिकॉज समटाइम बहुत ही इरेगुलर होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. माइन वन इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम प्रीवियसली. सो आप इसे रेडी टू यूज़ ही रखें. जब भी ख़त्म हो, आप प्लीज़ उसी टाइम में स्टेरिलाइज करके रख दो इसे, कोई इशू नहीं होगा. बट मेक श्योर स्टेरिलाइजेशन के बिना आप इसे यूज़ मत करना. इट्स अ सेफ्टी पर्पस. सो बहुत ईजी है, 10 मिनट लगेंगे. 10 मिनट आपको खड़े होने की भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप चले जाइए, अपने काम कर लीजिए, बट इसे 10 मिनट के लिए रख दीजिएगा. नाउ कम्स टू हाउ यू इनर्ट. बाकी जो दूसरे साइजेस है, यू कैन डू दिस ईजीली, बट फॉर द टीनेजर्स. एंड कौन से टीनेजर्स यूज़ कर सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आप ज़्यादा छोटे हैं
और आप मेंटली स्टेबल है कि इसे कैसे इनर्ट करें, एग्जिट कैसे लें, देन यू कैन गो अहेड. Now, without wasting any time, I can now tell you how I am using it. So this is my cup and make sure आप जो भी कप लेना उसमें स्टेम हो, ऐसे स्टेम हो, या फिर अभी सर्कल वाला भी आ रहा है जिसमें से फिंगर अटका के आप ऐसे खींच सकते हैं. सो स्टेम वाला ही ले. कुछ कप्स ऐसे आ रहे हैं, लेट मी बिफोर लाइक लुक दिस, ऐसे भी आ रहे हैं कुछ, तो उन्हें मतलब लुक दिस इज सो फ्लेक्सिबल. सो थिंग इज दैट ऐसे पंच डाउन करना है बिल्कुल ऐसे बीच में, ठीक है. फिर ये जो पॉइंट है ना, इसे ऐसे प्रेस करना है, देन मेक इट अ रोल लाइक दिस. उसमें जो है ऐसे पंच डाउन है, आप ऐसे रोल करो उसे बिल्कुल यहाँ करना है, ऐसे छोटा सा बना दो ऐसे. देन ट्राई टू इनर्ट इट एंड बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव रखना है अपना. थोड़ा सा पुश करना है ऐसे अंदर डालना, देन यहाँ से ऐसे प्रेस करना. एंड वन मोर थिंग टू से, अगर कोई बोल रहा है ना इस पे लिखा है पॉप साउंड आएगा, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है. सो एज आई से कोई ज़रूरी नहीं है पॉप साउंड आए या ना आए. मैंने खुद अभी मैंने बताया, मैंने सितंबर या फिर अक्टूबर में से ऑर्डर किया था एंड मैंने स्टार्ट किया था यूज़ करना दिसंबर से. सो मुझे अब तक नहीं आई है, लाइक फ्रॉम दिसंबर टू दिस सितंबर अब तक तो नहीं आई है. सो इट्स अ मिथ. मे भी हो सकता है किसी किसी को आती हो, किसी किसी को ना आती हो. मैं ना आने वालों में से हूँ. सो मैंने बहुत बार ट्राई किया है कि आए, या तो वो मैं ही नहीं सुन पाती हूँ. मैं शांत जगह पे भी ट्राई किया है, नहीं आती है मुझे, टू बी ऑनेस्ट. वो अपने आप फिट हो जाता है. उसकी वजह से तो मुझे एक बार कन्फ्यूजन हो गया कि गलत तो नहीं लग गया, क्योंकि आवाज़ ही नहीं आ रही है. तो ऐसा कुछ है नहीं, वो लग जाएगा. पता है करने के लिए सिंपल एक ट्रिक है, लगा के 1 घंटा रुको, देन चेक. इफ़ इट्स लीक देन इट्स नॉट स्टेबल, देन आप देखना उसे ठीक से फिंगर से, तो आपको पता चल जाएगा इजीली. So through your finger you can check, or else you can go to washroom and see your clothes. So पॉप साउंड ज़रूरी नहीं है. तो पॉप साउंड की वजह से ना कंफ्यूज मत हो जाना, बस चेक कर लेना 1 घंटे बाद, इट विल हेल्प. नेक्स्ट, हाउ यू कैन टेक इट आउट. वैसे इसके बुकलेट में लिखा हुआ है जस्ट स्क्वाट एंड देन इट टेक्स आउट. सो अगर आप वॉशरूम में हैं एंड बैठ के जस्ट use your finger to find out whether it is in left side or right side, then try to hold the stem and उसे खींचो. हाथ में आ जाती है सब, पकड़ो इसे, ऐसे खींचो, ट्राई करना. जैसे इसे बाहर आएगा ना, जब भी बाहर इतना आ जाएगा, लाइक ये इतना है, आपने स्टेम ढूंढा है इसका, यहाँ तक ले आए हो. जब ये यहाँ तक आ जाए ना, देन थोड़ा सा ऊपर कर लेना, यहाँ पे टच कर लेना. नहीं होता है टच, इट्स ओके. इसी से खींचो ऐसे बाहर, इसी से ऐसे ऐसे करना. इसे कितना भी खींचो नहीं टूटता, तो इससे बाहर आ जाएगा. और अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो रहे हो ना वॉशरूम में निकालने से, देन गो टूवर्ड्स योर बाथरूम, सिट हियर क्वाइटली. आप स्क्वाट पोजीशन में बैठो, थोड़ा सा स्प्रेड करो, देन फाइंड आउट. और ऐसा लग रहा है ना लेफ्ट राइट क्यों बोला, सो ये ऐसे होता है ना, तो इसका स्टेम थोड़ा सा ऐसा टिल्ट होता है, इस साइड या उस साइड होता है. ये बॉडी में थोड़ा साइड में लगता है, सेंटर में नहीं मिलता. देन यू कैन टेक इट आउट ईजीली. और जब ये बाहर है ना थोड़ा, देन आप जब ये इतना बाहर आ जाता है तो आप इजीली से यहाँ से वैसे ऐसे निकाल सकते हो. अप टू 12 आवर्स आप इजीली यूज़ कर सकते हो. फर्स्ट डे का मैं नहीं कह सकती, सेकंड थर्ड फोर्थ डे जो भी आपका उसमें आप यूज़ कर सकते हो इसे. फर्स्ट डे में मे बी आप 7 to 8 आवर्स निकाल लो. सो इट इज़ बेटर देन पैड्स, बेटर देन टैम्पॉन्स. वो भी ऐसे स्प्रेड हो जाएगा. एंड टैम्पॉन्स की लाइफ, आई हैव नेवर यूज टैम्पॉन्स, तो मुझे उसकी लाइफ नहीं पता. ये आप इजीली 5 years तक यूज़ कर सकते हैं. और मेंस्ट्रुअल पैंटीज आप 2 साल तक यूज़ कर सकते हैं. एंड सैनिटरी तो डिकम्पोजेबल भी नहीं होती. सो टैम्पॉन यूज़र्स अपना ध्यान रखें. एंड मुझे नहीं पता वो कितने आवर्स तक एप्लीकेबल रहता है, कब तक यूज़ कर सकते हैं आप उसे, लेकिन वो श्योरली हार्मफुल है आपकी बॉडी के लिए. TSS रेयरली होते हैं बट हो जाते हैं. यू कैन यूज़ कप. बार बार आपको सैनिटरी पे पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे. आप 1 लेके रख सकते हैं, 2 लेके रख सकते हैं. एंड मेंस्ट्रुअल पैंटीज अगर आपको यूज़ करनी है, यू कैन ट्राई बाय, एंड 2 साल तक आप यूज़ कर सकते हैं. हाँ, अगर आप पैंटीज ले रहे हैं या फिर रीयूजेबल पैड्स ले रहे हैं ना, जो कि क्लॉथ वाले हैं, आप उसे लगा सकते हैं, स्टिक कर सकते हैं. वहाँ पे से स्टक बटन होता है ऐसे वाला, जो कि यूज़ हो जाता है आपके क्लॉथ्स पे. तो अगर आप वो वाले भी ले रहे हैं ना, तो उसे भी स्टेरिलाइज करना, उसे पानी में बॉईल नहीं करना स्टेरिलाइज के लिए. मेक श्योर आप उसे 15 से 20 मिनट या फिर आधा घंटा धूप में रख रहे हैं.
अब वो घर में सूखे, मशीन में सूखे, या फिर आप धूप में ही डाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। धूप जो है वो नेचुरली उसे स्टेरिलाइज कर देगी। दिस स्टेरिलाइजेशन मेथड जो कि धूप से होता है, आप अपने क्लोथ लाइक मेंस्ट्रुअल पैंटीज और रीयूजेबल पैड्स में यूज़ कर सकते हैं कि आप उसे धूप से स्टेरिलाइज करें, एंड करना ही प्लीज़ फॉर योर हाइजीन। और बाकी कप को तो बॉईल कर लेना है। बाकी इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल कप, देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो, और एल्स यू फाइंड एनी प्रॉब्लम, या तो कमेंट कर देना या तो फिर डीएम कर देना, आई विल चेक। एंड दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। एंड इस टाइम ये वीडियो बनाने का पर्पस ये था क्योंकि जब मैंने ऑर्डर किया था ना, मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस करी थी। लाइक सितंबर से दिसंबर तक मुझे बहुत कन्फ्यूजन थी बिकॉज वो इनर्ट नहीं हो रहा था। सो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल, and thanks for watching.